Hello, good evening all. My name is Prince Gar and now on I will upload certain videos of certain topics which can be very important in civil service exam, both prelims as well as mains. You know friends, when I was preparing for civil service exam, my teachers, many coaching used to tell me that no topic is less important and no topic is more important. Every topic every topic has equal weightage. हर टॉपिक की तैयारी करो, every topic is important. But after giving more than a decade to civil service preparation, I have realized this is not true. Few topics are more important and few topics are less important. कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ कम इम्पोर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में लें, सो लाइक देयर इज अ टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी. अगर आपने सेट थ्योरी नहीं भी पढ़ी, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड द मैथ्स. बट अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा तो मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ पाओगे. तो लाइक वाइज सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी, इनके सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, जनरल साइंस हो या करंट अफेयर्स हो. सर्टेन टॉपिक्स कैरी मोर वेटेज. This can be explained by number of reasons such as UPSC wants a civil servant to know at least basic things like basics of history, basics of geography, basics of constitution. And even if you don't know very complex things, but at least you should know the basics. So I have compiled certain topics after examining last 20 years of civil service exam. पिछले 20 साल के पेपर्स मैंने स्टडी किए हैं and I have culled out certain topics which have been asked again and again by UPSC. Today I am going to share one article with you. इस article से you will see UPSC has asked multiple times questions. इसका मैंने नाम दिया है Foreign Travelers in India. So topic name is Foreign Travelers in India. Okay. So let's see. So our first foreign traveler was Megasthenes. He came to India at around 300 BC. He was a Greek ambassador. He came from Greece. So he was a Greek ambassador who was sent by Seleucus, and he came to the court of Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan dynasty. So what is important about Megasthenes? Number one, he was a Greek ambassador. He was sent by Seleucus and he came to the court of Chandragupta Maurya. He wrote a very important book called Indica. Okay. So he wrote a very important book Indica. आज ये बुक विलुप्त हो चुकी है, पर इस बुक के बारे में आज भी हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं. लाइक इस बुक में मेग्सथीनेस लिखते हैं कि देयर आर 7 सोशल क्लासेस इन इंडिया. जनरली हम 4 वर्णा के बारे में बोलते हैं, but Megasthenes wrote that there are 7 social classes in India, such as philosophers, farmers, artisans, soldiers, overseers, counselors, herdsmen, etc. Megasthenes also बोलते हैं that there was no slavery in India. So there was no slavery in India, in ancient India. Megasthenes also says कि जो Mauryan Empire है, it had a specialized department for military. Like there were 6 committees in War Council of Maurya. So this is all about Megasthenes. You can read more in books, but this is the main thing. Second हम आते हैं Fahiyan पे. Our second traveler is Fahiyan. So first he was the first Chinese traveler who came to India. He came during the reign of Chandragupta II. He is also known by the name of Vikramaditya. Okay. सो फाहियान का जो बेसिक मोटिव था वो था यहाँ बुद्धिस्ट स्टडी को थोड़ा पढ़ना, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका टॉपिक था विनय पिटका को स्टडी करना. सो बुद्धिज्म में 3 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: विनय पिटका, सुट्टा पिटका एंड अभिधम पिटका. सो ही केम हेयर टू कलेक्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ विनय पिटका. तो विनय पिटका क्या बोलते हैं हमें? विनय पिटका टीचेस अस द डिसिप्लिन. दिस इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच टीचेस अस डिसिप्लिन इन लाइफ. सेकेंड इज अभिधम पिटका. अभिधम पिटका क्या हमें टीच करते हैं? फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स. एंड थर्ड इज द सुट्टा पिटका. Sutta Pitaka contains the doctrines of Buddhism.
राइट। तो जो हमारे फाहियान यहाँ पे विनय पिटका को स्टडी करने आए थे, एक बात और बताना चाहूँगा, जो विनय पिटका है इट वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। एज यू नो देर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, है ना। तो विनय पिटका जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। वी कैन आल्सो लाइक डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल। सो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है इट वॉज हेल्ड अराउंड 480 BC। इट वॉज हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ मगधा, दैट इज राजगृह। इट वॉज हेल्ड अंडर द किंग अजात शत्रु। क्या हुआ था यहाँ पे, विनय पिटका को कंपाइल किया गया था। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी इट वॉज हेल्ड आफ्टर 100 years, अराउंड 383 BC। इट वॉज हेल्ड इन द थर्ड कैपिटल ऑफ मगधा, दैट इज वैशाली। इट वॉज हेल्ड अंडर किंग काला अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन 250 BC in Patliputra. Patliputra was another capital of Magda in ancient times. It was held under King Ashoka, the Great Ashoka. And the fourth council, it was held in 72 AD under the King Kanishka. It was held in Kashmir or Kundalban. This is all about Faya. Third, we will study the Huayin Sang. Okay. So Huayin Sang, he was also a Chinese scholar who visited during the reign of Harsha. हर्षा के टाइम पे आए थे। इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया वाज रूल्ड बाय हर्षा, साउथ इंडिया वाज रूल्ड बाय पुलाकेशिन II, दैट वाज द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, एंड नरसिंहा वर्मन I, दैट वाज द रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। तो जो हुएन सांग इंडिया में आए, ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत टेक्स्ट इनटू चाइनीज टेक्स्ट। ओके। So Huayin Sang also described that there was a caste system in India, practice of sati was there in India. Huayin Sang ने एक और बात बोलते हैं कि जो इंडिया में जुडिशरी होती थी, समटाइम्स क्या होता था कि जुडिशरी हैड नो आइडिया कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। देन दे यूज्ड टू इनवाइट द डिवाइन इंटरवेंशन, लाइक किसी को पॉइजन खिला देंगे या किसी की अग्नि परीक्षा लेंगे। लिटरली ये काम होते थे जो कि Huayin Sang लिख के गए हैं। Huayin Sang ये भी लिखते हैं कि इंडिया में ट्रेड वाज फ्लरिशिंग during the reign of Harsha, or traders or businessmen they used to pay the small taxes. So this is all about Huayin Sang. Third is Al-Biruni. तो 1000th century में आए थे ये। He came with the Mahmud of Ghazni. Al-Biruni is also known as the father of Indology. What is Indology? Indology is the study of Indian tradition and culture and religion. This is the Indology. So Al-Biruni is also known as the father of Indology. Al-Biruni had written a very important book, that is किताबुल हिंद। इन्होंने लिखी है। किताबुल हिंद हमें क्या बताती है, मिडिवल टाइम्स में इंडिया में क्या ट्रेडिशन था, क्या कल्चर था, कैसा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में किताबुल हिंद हमें बताती है। किताबुल हिंद हमें ये भी बताती है कि इंडिया वाज वेरी एडवांस्ड इन फील्ड ऑफ साइंस, लाइक इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। देयर वर सो मेनी स्टडीज वर बीइंग टेकन अप इन मिडिवल इंडिया। किताबुल हिंद also mention about caste system in India, like जाति प्रथा, practice of sati. Al-Biruni was highly critical of Indian tradition. वो बोलते थे कि जो इंडियन कल्चर है, जो रिलीजन है, दैट इज़ वेरी फैटलिस्टिक है, वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, बहुत बैकवर्ड है, आइडल वर्शिप यहाँ पे होती है। मे बी Al-Biruni was right in some way, बट वो इतना डीप में इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं समझ सके, तो थोड़ी उनमें कमियाँ भी थी, इतना सोफिस्टिकेटली वो नहीं पढ़ पाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इब्न बतूता। वो 1340 में आए थे और ही वाज ए जज इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता हैज़ कंपाइल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, दैट इज़ रिहाला में क्या किया गया है, दिल्ली के बारे में बताया गया है। रिहाला में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, रिहाला मेंशंस दैट देयर वाज ए वेरी एडवांस्ड डेवलप्ड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। तो रिहाला बोलता है कि मिडिवल सेंचुरी में भी इंडिया में बहुत ही अच्छा एडवांस पोस्टल सिस्टम था। नेक्स्ट हमारे ट्रेवलर हैं फ्रैंकोइस बर्नियर। 1660 के आसपास यहाँ पे आए थे, 1660 में यहाँ पे आए थे। ही वाज ए पर्सनल फिजिशियन ऑफ दारा शिको वाज द ब्रदर ऑफ औरंगजेब। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ दारा शिको, बर्नियर बिकेम द पर्सनल डॉक्टर ऑफ योर औरंगजेब। नेक्स्ट इज आवर जैन बैप्टिस्टे। ही वाज ए फ्रेंच जेम मर्चेंट, जो इंडिया में आया था डायमंड देखने के लिए, मतलब डायमंड की ट्रेड करने के लिए। मेन उनका मोटिव यही था। मुगल काल में आए थे, कई बार आए और चले गए। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि लास्ट 20 सालों में या 10 सालों में यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी हैज़ आस्क्ड मैनी क्वेश्चन।
few questions I am going to put forward you before you. Okay, like first question is, it was asked by UPSC in civil service prelims exam in 2025, last year only. Question was, Fahian the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of which ruler? Very easy. हमने we have just studied कि फाहियान जो आए थे इंडिया में, he came during the reign of Harsha. Easy question. Let's see second question. Second question it was asked by UPSC in 2020. 2020 में पूछा गया था. Question is about Maecenas. बोलते हैं कि Maecenas, a Greek ambassador, wrote Indica. Which aspects of India have not been discussed in Indica? Indica में क्या डिस्कस नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, डिस्कस किया गया है. सेकंड इज सोशल कस्टम, डिस्कस किया गया है. थर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिस्कस किया गया है. लास्ट इज साइंटिफिक अचीवमेंट्स. यस, इंडिका इज साइलेंट अबाउट साइंटिफिक अचीवमेंट इन इंडिया. तो लास्ट क्वेश्चन वाज, लास्ट ऑप्शन इज राइट. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया यूपीएससी द्वारा. द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग who visited India recorded general conditions and cultures of India. Which of the following statement is not correct? पहला क्वेश्चन है, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी. अगर आपको ह्वेनसांग के बारे में नॉलेज नहीं भी है तो आप गेस कर सकते हैं कि हाउ कुड द रोड्स बी टोटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. ये आज भी इम्यून नहीं है तो रॉबरी में कैसे इम्यून हो सकती है. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन, ये हमारा आंसर, ऑप्शन हमारा गलत है. इसको हम टिक कर सकते थे. सेकेंड बोलते हैं ह्वेनसांग कि जो इंडिया में पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर, पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन. हमने डिस्कस किया है कि ह्वेनसांग बोलते थे कि जब कोई जज डिसाइड नहीं कर पाते थे तो वो डिवाइन इंटरवेंशन को इन्वाइट करते थे. थर्ड इज द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज. अभी पढ़ा हमने, ये तो ह्वेनसांग बोल के गए हैं कि जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, दे हैड टू पे द ड्यूटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है 2023 में आया है, 2023 में. दिस इज क्वेश्चन बोलता है, एक्चुअली दिस वाज आस्क्ड इन मेंस एग्जाम, एग्जामिनिंग द डिफेक्ट्स इन अल-बरूनी's असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. हमने पढ़ा कि जो अल-बरूनी था, ही वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर. टू सम एक्सटेंट ही वाज राइट, टू सम एक्सटेंट ही वाज नॉट राइट. लाइक ही वाज टू मच अगेंस्ट ऑफ हिंदुइज्म, टू मच अगेंस्ट ऑफ इंडियन कल्चर. कुछ बैकवर्डनेस थी जो कि वेलकम है, हम वेलकम करते हैं अगर उनको क्रिटिसिज्म करता है, पर कुछ चीज़ें थी जो पूरी तरह से गलत नहीं थी. ठीक है, उनको उसने इग्नोर किया. Next question is, it was asked in 2020 again. Ibn Battuta, the famous 14th century traveler, visited India during the reign of which Sultan? हमें अभी पढ़ा, he was a judge in the court of Muhammad bin Tughlaq. Very easy question. One more question UPSC पूछता है 2018 में. Which of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines in India? हमने जस्ट पढ़ा, जो फ्रेंच ट्रेवलर था जीन बैप्टिस्टे, he was a jeweler, तो इंडिया में आता रहता था. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. अभी तक हमने 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अगर आप यूपीएससी के पिछले 20 साल के पेपर उठाएंगे, आपको 5-6 क्वेश्चन और मिल जाएंगे. तो उन्होंने एवरेज हर 2 से 3 साल में यूपीएससी एक बार इस टॉपिक को ज़रूर टच करता है, फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया. बिल्कुल भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. थोड़ा सा भी अगर इसको आधे घंटे पढ़ लें तो हमारा एक क्वेश्चन तो रेडी हो सकता है. नो डाउट यूपीएससी आस्क मैनी क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो हमें कभी समझ नहीं आते, कहाँ से आ गए पता नहीं है. पर कुछ टॉपिक्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट होते हैं for certain reasons. Okay, I am going to give you one question. अगर आपको अच्छा लगे इसका आंसर मुझे लिख के दिखाना कमेंट में, and I will give you my remarks. Question is, to what extent accounts of foreign travelers enhance our understanding of ancient and medieval times in India? जो foreign travelers हैं उनकी राइटिंग से हमें ancient और medieval times के बारे में क्या पता लगता है. ancient के बारे में आप Maecenas को उठा सकते हैं, फाहियान को उठा सकते हैं, ह्वेनसांग को उठा सकते हैं. मिडीवल में अगर आपको उठाना है आप अल-बरूनी को उठा सकते हैं. ठीक है, इनके बारे में आप कुछ लिखना है कि इंडिया में उन्होंने क्या क्या देखा, अपनी बुक्स के बारे में क्या लिखा, यही कुछ लिखना है. और यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ट्राई करो. और अगर आपको मेरा पसंद आया वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल कीप शेयरिंग मोर वीडियोज़ अबाउट सर्टेन टॉपिक्स which are important and which are hard to ignore if you are serious for UPSC. Thank you.